خوش آمدید کہتا ہے لائیو TV.TV کی نعمت رمضان ٹرانسمیشن میں. تو کل جو ہم نے ائمہ تارین صلوات اللہ علیہم اجمعین کا ذکر جو ہم نے جاری کیا ہوا ہے، اور کل ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت پہ جو ہے یہ اس کو اختتام کیا تھا. اور شہادت پہ کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی مختلف ان کی زوجوں سے ان کی جو 10 اولادیں تھیں، جن میں 7 لڑکے تھے اور 3 لڑکیاں تھیں. اور ان کے اس میں گامی میں نے آپ کو بتایا سب سے بڑے جو تھے اسماعیل تھے، سب سے دوسرے جو تھے موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے، جو کہ 7ویں امام سلسلے کے 7ویں امام بھی ہیں. اور ان سے چھوٹے عبداللہ تھے، ان کے بعد اسحاق، پھر محمد، عباس، پھر علی، اور بیٹیوں کے نام تھے ام فروہ، اسماء اور فاطمہ. تو جو اسماعیل جو ان کے بڑے بیٹے تھے، ان کا جو انتقال جو تھا ان کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں. اور انہوں نے جو ہے جب ان کی شہادت سے پہلے انہوں نے جو ہے منصوب اللہ جو ہے موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جو ہے وہ انہوں نے امام اپوائنٹ کیا اللہ کی رحمت حکم کے ساتھ. تو امام جو ہے ابو موسیٰ کاظم جو ہے، جو کہ سلسلہ امامت کے 7ویں امام ہیں، تو ان کا تھوڑا سا میں آپ کو ایک اسکیچ دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ سلسلہ امامت کے 7ویں امام و تاجدار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7 صفر 128 ہجری بروز اتوار مقام ابوا، یہ مقام مدینہ اور مکہ کے درمیان واقع ہے کہ بطن مادر سے اس دنیا میں تشریف لائے. آپ علیہ السلام کی والد ماجد امام جعفر صادق علیہ السلام، جس میں نے آپ کو بتایا، والدہ گرامی جناب حمیدہ خاتون ہیں، جو اندلس کی رہنے والی تھی. انہی نیک خاتون کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا، یہ دنیا میں حمیدہ اور آخرت میں محمودہ ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے بوقت ولادت ہاتھوں کو زمین پر ٹیک لگا کر آسمان کی طرف رخ فرمایا اور زبان مبارک سے کلمہ شہادت کا ذکر کیا. آپ کے پدر بزرگوار نے آپ کا نام موسیٰ رکھا. کنیت آپ کی ابو حسن، ابو ابراہیم، ابو علی اور ابو عبداللہ ہے. آپ کے القابات نے کاظم، عبد الصالح، نفس، زکیہ، امین، باب الحوائج، لیکن آپ کاظم کے لقب سے زیادہ معروف ہیں. باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. شہزادہ اصغر علیہ السلام کو بھی باب الحوائج ہے، ان کو بھی کہا جاتا ہے. اور مولانا عباس کو بھی باب الحوائج کہا جاتا ہے، اس کا آپ کو پتہ ہے. تو کاظم کی وجہ رسمی یہ ہے کہ آپ برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ احسان فرماتے تھے، اور آپ جو لوگ آپ کو ستاتے ان سے درگزر فرماتے اور اپنے غصے کو ظاہر نہ ہونے دیتے. آپ حلیم، تباہ، بردبار، اپنے غصے کو پی جانے والے تھے. تو بہت صفات تھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، ان سے چند میں نے بھی آپ کو بتائیں. صفون جمال کہتے ہیں، میں نے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے اس امر امامت کے مالک کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس امر امامت کا مالک دنیاوی کھیل کود سے بے نیاز ہوتا ہے. اتنے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے. اس وقت آپ کمسن تھے اور آپ کے ہاتھ میں مکے کا چھوٹا سا جانور تھا، اور اسے کہہ رہے تھے اپنے رب کو سجدہ کرو. چنانچہ امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے انہیں اپنے سینے سے لگایا، فرمایا میرے ماں باپ اس پر قربان جو دنیاوی کھیل کود سے بے نیاز ہے. اور آپ کے ہر امام کے معجزات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیے، تو آپ کے یہ معجزات ہیں، میں تذکرہ کرتے ہوئے چلتا ہوں. کہ حضرت شفیع بلغی سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حج کے موسم میں دوران سفر سرزمین قادسیہ جا نکلا. وہاں میں نے ایک بلند قدام و خوبصورت نوجوان کو دیکھا جس نے پشمینے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کندھے پر شملہ اور پاؤں پر نالین تھی. وہ انسانوں کے ہجوم سے نکل کر ایک جگہ اکیلا بیٹھ گیا. میں نے دل میں خیال کیا یہ نوجوان طبقہ صوفیہ سے معلوم ہوتا ہے اور شاید یہ چاہتا ہے کہ سفر میں مسلمان کو بھاری بن جائے. جو ہی میں سے قریب پہنچا تو اس نے کہا، اے شفیق، بہت سے گمانوں سے پرہیز کرو، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. میں نے دل میں خیال کیا یہ عجیب بات ہوئی، اس نے تو میرا نام اور معافی الضمیر تک بیان کر دیا. یقیناً یہ کوئی نیک آدمی ہے، مجھ سے اس سے معافی مانگنی چاہیے. میں نے چند قدم چلنے کی کوشش کی لیکن اسے پا نہ سکا. اگلی منزل پر پہنچا تو میں نے اسے نماز میں مشغول دیکھا. اس کے جسم پر لذت طاری تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. میں نے پھر چاہا کہ اس سے معافی مانگوں. کچھ دیر بعد کی طرف چل دیا تو اس نے کہا، اے شفیق، قول خدا ہے
जो मुझसे माफ़ी तलब करता है मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। ये कहकर वो आगे रवाना हुआ। मैंने समझा ये नौजवान अब्दालों में से है जिसने दोबारा में दिल की बात बता दी। जब एक और जगह पहुँचे तो मैंने उसे कुएं पर खड़ा देखा। उसके हाथ में एक चरमी डोल था जिससे वो कुएं से पानी निकालना चाहता था, लेकिन वो डोल उसके हाथ से कुएं में जा गिरा। उसने अपना चेहरा आसमान की तरफ किया और कहा, है मेरे पालने वाले, जब मैं प्यासा होता हूँ तो तू वही मुझे शराब करता है, दूध में खाना खिलाता है। मैं खुदाया इस कूदे के अलावा मेरे पास कोई और बर्तन नहीं। अब मेरे मालिक मेरे कूदे पर आप बरामद कर दे। बाखुदा मैंने पानी को ऊपर आते देखा। इस नौजवान ने हाथ बढ़ाकर अपना डोल सतायाब से उठा लिया और उसे वुज़ू करके 4 रकात नमाज अदा की। फिर वो रेत के टीले की तरफ चल दिया और अपनी मिट्टी में थोड़ी जरूरत पकड़कर इस डोल में डाल दी। तो इसे खूब हिलाया और पी गया। मैंने ये देखा तो उसके पास गया। मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया। मैंने कहा मुझे खाना खिलाइए क्योंकि खुदा ताला ने आपको बहुत ज़्यादा अता कर रखा है। नौजवान ने कहा, शफीक, हमेशा खुदावंद ताला की ज़ाहिर और बातिन की नेमतें मुझे मिलती रहती हैं, इसलिए तो खुदा ताला के बारे में नेक गुमान रख। फिर उसने वही डोल मेरी तरफ बढ़ा दिया जिसमें पानी दिया था। इसमें सत्तू और शक्कर थी। खुदा एक रकम उनसे शीनी और लजीज चीज़ मैंने कभी नहीं ली। मैं सैर व सैराब हो गया, यहाँ तक कि चंद दिनों तक मुझे खाने पीने की हाजत न हुई। उसके बाद वो मुझे नज़र न आया। जब मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो मैंने उसे नमाज तहज्जुद में मशगूल देखा। वो बहुत खुशू व वज़ू से नमाज पढ़ रहा था और आंखों से आंसू जारी थे। ये सिलसिला तमाम रात जारी रहा। सुबह हुई तो नमाज फजर के बाद तवाफ़ करने गया। तवाफ़ करके बाहर चला गया। मैं भी उसके पीछे हो गया। मैंने देखा अब उसके पास कहीं गुलाम और खादिम थे और लोगों ने उसे घेर रखा था और कह रहे थे, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह। मैंने उनके बारे में दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि हज़रत मूसा बिन जाफ़र बिन मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। तो मेरे मुँह से बरजस्ता जुमला निकला, इस सैयद के लिए इसके अजीब व गरीब बातों को ज़रूर कोई ताज्जुब है इस बात नहीं। एक और शख्स की रिवायत है कि जब हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को मेहदी मंसूर ने पहली बार बगदाद में तलब किया, जो कि अब्बासी बादशाह था उस वक्त, तो आपने मुझे ज़रूरत की ज़िंदगी खरीदने के लिए बाज़ार भेजा। जब आपकी नज़र मुझ पर पड़ी तो आपने मुझे मगमूम पर परेशान लेकर फरमाया, फलां क्या बात है, तू परेशान नज़र आता है। मैंने कहा, मैं परेशान क्यों ना हूँ, आप ऐसे जालिम के पास जा रहे हैं जिसके पास जाने का अंजाम न जाने क्या होगा। आपने फरमाया, कोई डर नहीं, मैं फलां के महीने की फलां तारीख तक वापस आ जाऊँगा, लिहाजा तुम बस शब मेरा इंतज़ार करना। मैंने उस दिन से शब व रोज़ शुमार करने शुरू कर दिए। जब वापसी का रोज़ आया तो मेरी इंतज़ार कशी कोई रंग न लाई। गरूब आफ्ताब हो गया लेकिन मुझे कुछ आता हुआ दिखाई न दिया। मेरे दिल में शैतानुल-लईन ने वसवसे डालने शुरू कर दिए और मुझ पर एक अजीम इज़्तिराब गालिब आ गया। अचानक मुझे राह की तरफ से एक तारीख नई नज़र आई और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इस तारीखी के आगे आगे एक खच्चर पर आवाज़ देते हुए आ रहे थे, ए फलां। मैंने कहा, या इब्ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर हूँ। आपने फरमाया, करीब तक तू वहम गुमाने पड़ जाता। मैंने अर्ज़ की, बिल्कुल यही बात थी। फिर उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको इस जालिम से खलासी हासिल हुई। आपने फरमाया, वो मुझे एक बार और बुलाएगा लेकिन इस मरतबा मुझे खलासी हासिल ना होगी। एक और रावी का बयान है, मैं मदीना मुनव्वरा में मुजाविर था। एक मकान मैंने किराए पर ले रखा था और ज़्यादातर इमाम हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर रहता था। एक दिन सख्त बारिश हुई और मैंने खिदमत में हाजिर होने का लिबास पहना। जब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो अस्सलाम वालेकुम कहा। आपने सलाम का जवाब दिया। फरमाया, फला, इस वक्त अपने घर चले जाओ क्योंकि तुम्हारे घर की छत तुम्हारे माल असबाब पर गिर पड़ी है। मैं वापस आया तो देखा कि मेरे घर की छत बह गई थी। मैंने छत मजदूरों को दिया, जिन्होंने मेरा सामान नीचे से निकाला तो मुझे कोई चीज़ तो वह तश्तरी की गुम न हुई। इसमें मैं वज़ू करता रहा। आपको पता चला तो आपने चंद लम्हों के लिए खामोश से फरमाया, मेरा ख्याल है तुम उसे किसी जगह भूल गए हो, जाओ अपनी सराय के मालिका की कनीज से पूछो, मेरी तश्तरी तुमने तो नहीं उठाई, अगर उठाई है तो मुझे वापस दे दे, ये तुम्हें दे देगी। मैंने वापस जाकर कनीज से कहा, मैं फलां जगह अपनी तश्तरी भूल गया था, तुम आई थी और उठा कर ले गई, वो मुझे वापस कर दो ताकि मैं वज़ू कर सकूँ। वो उसी हालत में गई और तश्तरी ला के वापस कर दी। एक और उनके माजाज का जिक्र हो रहा है, इमाम मूसा काज़िम बेशुमार है, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास वक्त महसूस हो रहा है तो मुझसे से आपको सुना रहे हैं। एक रावी का बयान है, अली बिन यकीन और एक और साहब ने मुझसे कहा,
फलां आदमी के साथ कुफा जाओ, हमारे 2 सवारियाँ खरीद कर ये ख़त और ये माल इमाम हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बिन इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचा दूँ। मैं कूफा गया और इस शख्स के हमरा 200 सवारियाँ खरीदी, 2 सवारियाँ खरीदी मदीना मुनव्वरा के नज़दीक पहुँचे तो एक जगह क़याम करके कुछ खाना शुरू कर दिया। अचानक हमारी नज़र इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पर पड़ी जो खच्चर पर सवार हमारी तरफ आ रहे थे। हम वह अदब बादब खड़े हो गए और अभी खिदमत अक़दस में सलाम किया। आपने फरमाया तुम्हारे पास जो कुछ भी है ले आओ। हमने सब कुछ पेश कर दिया, वे रुख़्सत भी आपको दे दिया। आपने कुछ खत अपनी आस्तीन पर निकाला और फरमाया कि तुम्हारे खतूत के जवाब में है, बाईमान खुदा वापस चले जाओ। हमने अर्ज़ की अगर हमारी अज़ादारी ख़त्म दर्द ख़त्म हो चुका है तो आप इजाज़त दें तो हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए भी अब कुछ माल असबाब ले लें। आपने फरमाया क्या तुम्हारे पास तोशे में से कुछ बाकी है? हमने अर्ज़ की हाँ। आपने फरमाया उसे मेरे पास ले आओ। हमने हाजिर कर दिया। आपने उसे हाथ में लेकर फरमाया ये ज़र्द राह हमारे लिए कूफा तक काफ़ी है, तो बाईमान खुदा वापस चले जाओ। आपका शाद हम वापस लौटाए और ज़र्द राह कूफा में भी आकर बाकी बचा रहा। उस वक्त के जो बादशाह वक्त थे हारून रशीद अब्बासी, वो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, तो उनसे रिलेटेड जो तस्करा है मैं आपको बताता हूँ कि अल्लामा इब्न हिज्र मक्की दायरे करते हैं जब हारून रशीद बासी खलीफा था हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा आया तो इमाम हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बारे में चुगली खाई कि उनके पास हथकस से मार आता है। चुनाचे एक दिन खाने का हज़रत इमाम मूसा काज़िम से हुई, वो आपसे कहने लगा क्या तुम ही वो हो जिनके लोग छुप छुप कर बैत करते हैं? इमाम हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम दिलों के मामाम हैं और तुम जिस्मों के। फिर हारून रशीद ने आपसे पूछा तुम किस दर्जे से कहते हो? हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत हैं, हालांकि तुम अली अलैहिस्सलाम की औलाद हो और हर शख्स दादा से मंसूब होता है, नाना से नहीं होता। इमाम हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान मजीद में इरशाद है वो ज़ाहिर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए थे, तो जिस तरह महज अपनी वालदा की निस्बत से ज़ुर्रियत अंबिया में मुअल्लक़ हुए, इस तरह हम भी अपनी वालदा गिरामी जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की निस्बत से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत है। फिर आपने फरमाया जब आयत मुबाइला नाजिल हुई तो बवक्त मुबाइला पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय अली अलैहिस्सलाम, सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा और हसन अलैहिस्सलाम ने किसी को नहीं बुलाया। लफ्ज़ अबनाहा के रोह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे करार दिए गए। इस ज़माने में आप हारून रशीद की कैद में थे, वो आपका मुख्तलिफ़ किस्म की रुकनियाँ कर रहा था। एक रात हारून रशीद ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को इस तरह ख्वाब में देखा कि वो तेशा लिए हुए तशरीफ़ लाया, फरमाया मेरे फर्जंद को रिहा कर दो वरना मैं तुझे कैफ़िर किरदार तक पहुँचा दूँगा। ये ख्वाब देखकर हारून रशीद बहुत खौफज़दा हुआ और इस वक्त इमाम हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की रिहाई का हुक्म दे दिया और इमाम से अर्ज़ की अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो रहें, अगर मदीना मुनव्वरा जाना चाहते हैं तो तशरीफ़ भेजें, आपको इख्तियार है। और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की थोड़ा शहादत का जिक्र है कि जब आप कुछ से बाद हारून रशीद ने आपको दोबारा बसरा में कैद कर दिया तो आपने इरादा किया अब किसी तरह इमाम हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया जाए। चुनांचे आपने ईसा बिन जाफ़र वाली बसरा को लिखा कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा कर बादशाह के लिए रात से सुकून मुहैया करे। वाली बसरा ने अपने दोस्तों और खैरखाओं से मशवरे के बाद हारून रशीद को लिखा है बादशाह मैंने इस साल के अंदर इमाम हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की कोई बुराई नहीं थी। आप शब रोज़ नमाज और रोज़े में मशगूल रहते हैं और आवाम और हुकूमत के लिए दुआ खैर करते रहते हैं। मैं उन्हें कत्ल करवा कर अपनी आक़िबत तबाह नहीं कर सकता, लिहाजा बादशाह मुझे इस गुनाह अज़ीम से बात रखिए और मुझे हुक्म दीजिए कि मैं इमाम हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को कैद व मशक्क़त से रिहा कर दूँ। वाली बसरा के जवाब पर हारून रशीद ने उस काम की जिम्मेदारी संदी बिन शाह के सुपुर्द की और ज़ालिम ने आपको
زہر دے کر شہید کر دیا۔ علامہ جامی تحریر کرتے ہیں زہر کھاتے ہی آپ نے فرمایا آج مجھے زہر دیا گیا ہے، کل میرا بدن زرد ہو جائے گا اور تیسرے دن سیاہ اور اسی دن میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ علامہ ابن حجر مکی تحریر کرتے ہیں کہ ہارون رشید اس وقت بادشاہ وقت عباسی بادشاہ نے آپ کو بغداد میں تائحات قید رکھا اور وفات کے بعد آپ کی ہتھکڑی و زنجیر کٹوائی گئی۔ ہارون رشید نے سندی منشاق کے ذریعے زہر دلوایا تھا، اس سے آپ 3 روز تک تڑپتے رہے یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی شہادت 25 رجب 183 ہجری بروز جمعۃ المبارک ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 55 برس تھی۔ روایت ہے کہ قید خانے سے آپ کے جسم مبارک کو ہتھکڑی اور بیڑی سمیت نکال کر بغداد کے پل پر ڈال دیا گیا۔ آپ کی شان اور آپ کی عقیدت مندوں کی شان میں انتہائی نازیبا کلمات کہے گئے۔ ہارون رشید کے خوف سے کسی آدمی میں جرت نہ تھی کہ کوئی غیرت مند آپ کی نعش کے قریب آتا۔ اس کے باوجود ایک گروہ نے جس کے سردار سلمان بن جعفر بن نبی جعفر نے ہمت کی اور نعش مبارک دشمن نشین کر کفن دفن کا پروگرام فرمایا اور ایک قیمتی کپڑے کا کفن دیا جس وقت پورا قرآن کریم میں پاک رقم تھا۔ پھر یہ لوگ انتہائی غم و علم کے ساتھ آپ کے جنازے کو لے کر مقبرہ قریش پہنچے۔ امام ہشتم علی رضا علیہ السلام مدینہ مربع سے باجاز وہاں پہنچ چکے تھے۔ آپ نے اپنے والد ماجد کی نماز جنازہ پڑھائی اور برفین کے بعد واپس مدینہ مربع تشریف لے گئے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد تقریباً 37 بیان کی جاتی ہیں جن میں 19 بیٹے اور 18 بیٹیاں تھیں۔ تو یہ ابھی ذکر آپ نے سنا، معصوم کا ذکر سنا آپ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو امامت کے سلسلے کے ساتھ میں امام ہیں، اور ان کی آپ نے فضائل سنے، ان کے معجزات سنے اور جس طرف سے ان کو گزارا گیا، زندگی کا بیشتر حصہ ان کو قید و بند میں رکھا ہارون رشید نے، اور روایتوں میں 17 سال سے زیادہ وہ قید میں رہے، زیادہ زندگی قید میں رہے، اور ان کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ان کی طرف جو ہے ان کے نسبت سے جو ہے آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہم نے آپ کو بتایا ان کا ان کی ولادت سے لے کے ان کی شہادت تک۔ تو ابھی ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم 8ویں امام علی رضا علیہ السلام جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں ان کا ذکر ہم کریں گے۔ تو ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں۔ کہیں نہیں جائے گا، دیکھتے رہیے گا کہ LiveTV.tv پر نعمت رمضان ٹرانسمیشن۔ ایک چھوٹا سا بریک پہ I'm designing for my overseas clients since last 15 years and اب میں نے پچھلے 1 سال سے اپنی برانڈ یہاں پاکستان میں لانچ کی ہے اور اب میری عید کلیکشن آنے والی ہے جس میں میں نے سمرز کے لائٹ کلرز اٹھائے ہیں، سافٹ مٹیریل اٹھایا ہے اور عید کے حوالے سے چونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ لڑکیاں چوڑیاں پہنیں گی، مہندی لگائیں گی، تو میں نے ویسٹرن کٹس پہ اتنا فوکس نہیں کیا۔ میں نے اسٹریٹ کرتاز پہ کام کیا ہے، اس پہ میں نے نیک لائن پہ میں نے لائٹ ورک دیا ہے تاکہ جو کہ سمر ہے تو لائٹ فیلنگس ہوں اور لائٹ کلرز کی وجہ سے کول فیلنگز آئیں، اور میں نے کرتاز کے دامن پہ کام کیا اور کچھ کلرز بھی ڈالیں تاکہ ایک عید کی وجہ سے تھوڑا سا کلرفل افیکٹ بھی آ جائے۔ تو مٹیریل میں میرے پاس شفون، کھٹی نیٹ اور لیسز بہت ان ہیں اور بہت لوگ شوق سے پہن رہے ہیں، تو میں نے لیسز کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے یوز کیا کہ اس میں اسٹائل بھی دے دیا ہے
और सिंपलिसिटी भी है, और आपको क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगे। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोती का को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्शी भी है, ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं। और इसके बैक पे भी ये चीज़ भी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़ है। Now everyone asks why RC because मैं अपने क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ, एंड मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of our sale. Assalamualaikum. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi and other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स वहाँ पे ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल, एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in the way we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का फिर guard select करते हैं. They see what are their requirements, वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you.
خوش آمدید کہتا ہے آپ کو. میں تارین کے بابت سفر میں جو ذکر کر رہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے, تو میں نے ذکر کیا امام مشرق کاظم علیہ السلام کا, جو سلسلہ امامت کے جو ہیں وہ 7ویں امام تھے. اور اس کے بعد جب ان کی شہادت ہو گئی, ہارون رشید بادشاہ وقت نے ان کو جہیز دے دیا اور ان کی شہادت ہوئی, تو پہلے انہوں نے جو ہے اپنے بڑے فرزند حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو جو ہے وہ انہوں نے منصوبہ اطلاع جو ہے امام نامزد کیا. اور امام علی رضا علیہ السلام کی خصوصیت یہ کہ جتنا اہتمام کیا گیا جب ان کو ان کی امامت کا, اتنا کبھی کسی امام کا نہیں کیا گیا. تو میں ذکر کرتا ہوں کہ آپ کی سلسلہ امامت جو تھے آپ کے 8ویں امام تاجدار حضرت امام علی رضا علیہ السلام بروز جمعرات 11 ربیع الاول 103 ہجری کو وطن مادر سے دنیا میں تشریف لائے. اپنے والد بزرگا کی طرف ولادت ہوتے ہی اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ دیے, پھر چہرے مبارک اور آسمان کی طرف کر کے زیر لب کچھ کچھ کہتے رہے. یوں لگتا ہے جیسے آپ کسی سے باتیں کر رہے ہوں. آپ کے والد ماجد حضرت امام مصطفیٰ علیہ السلام اور والدہ محترمہ ام البنین عرف نجمہ ہیں. آپ کی والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں حاملہ ہوئی تو مجھے کسی قسم کا بوجھ محسوس نہ ہوا, اور سوتے وقت مجھے اپنے پیٹ سے تصویر و تحریر اور حمد و ثنا کی آوازیں سنائی دیتی. مجھ پر ایک ہیبت غالب آ جاتی تھی اور میں بیدار ہو جاتی تھی. پھر مجھے کبھی کوئی آواز نہ آتی. آپ کا نام علی علیہ السلام کو ابو الحسن تھی. آپ کے القاب میں صابر, ذکی, ولی, رضی, وسیع مشہور ہیں, لیکن آپ نے رضا سے زیادہ شہرت پائی. اور امام نظم میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کس طرح ان کو نامنیٹ کیا گیا. تو اسی تفصیلیوں کے عبدالرحمان بن حجاج کہتے ہیں حضرت ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اپنے فرزند علی رضا علیہ السلام کو وصیت کی. ان کے ایک خط بھی تحریر فرمایا جس میں مدینے کے 60 معتبر افراد کو گواہ ٹھہرایا گیا. مطلب اتنی اہتمام کیا گیا ان کا اس کا کہ جب ان کو جو ہے امام نامنیٹ کیا اللہ کے حکم سے. تو اس وقت جو ہے جو بادشاہ وغیرہ تھا وہ مامون رشید تھا. تو ابو سالد بروئی کہتے ہیں کہ مامون رشید حضرت امام حضرت علی رضا علیہ السلام سے کہا ہے فرزند رسول میں نے فیصلہ کیا ہے میں خلافت گزار ہو کر آپ کو خلیفہ بنا دوں اور آپ کی بیعت کر لوں. آپ نے فرمایا اگر یہ خلافت تمہارے لیے اور خدا تمہارے خلیفہ بنایا ہے تو پھر یہ بات جائز نہیں. جو لباس خدا نے تمہیں بنایا ہے تو آخر کسی اور کو پہناؤ. جس طرح اگر خلافت تمہارے لیے نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو چیز تمہاری ملکیت نہیں وہ تم دوسروں کو دے دو. مامون نے کہا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ عمل ضرور قابل قبول کرنا پڑے گا. امام حضرت علی رضا علیہ السلام نے فرمایا میں یہ بات برض و رغبت کبھی نہیں قبول کر سکتا. تمہارا مقصد یہ ہے کہ لوگ میرے بارے میں کہیں کہ علی بن موسیٰ علیہ السلام ابھی تک تو دنیا تک کا کشی کرتے تھے اور دنیا ان کے پیچھے بھاگتی تھی, لیکن اب انہوں نے خلافت کے لالچ میں ولی عہدی کو قبول کر لیا. یہ سن کر مامون رشید کو غصہ آ گیا. اس نے کہا میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ آپ نے ولی عہد کو قبول نہ کیا تو میں زبردستی آپ سے منواؤں گا. اگر آپ نے پھر بھی قبول نہ کیا تو آپ کی گردن اڑا دوں گا. آپ مختلف زبانیں بھی جانتے تھے جس کی تفصیل کچھ میں. ابو سالد حربی کہتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام لوگوں سے مختلف زبانوں میں گفتگو کرتے تھے. خدائی قسم آپ تمام لوگوں سے زیادہ فصیح و بلیغ گفتگو کرتے تھے اور ان سے بہتر انہیں کی زبانوں کو جانتے تھے. چنانچہ ایک دن میں نے امام صاحب سے پوچھا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعجب ہے آپ ان لوگوں کو مختلف زبانیں جانتے ہیں. انہوں نے فرمایا اے ابو سالد میں خدا کی مخلوق سے اس کی عزت ہوں. خداوند عالم کسی قوم کے لیے ایسی کو عزت نہیں بھیجتا جسے اس قوم کی زبان کا علم نہ ہو. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے ہمیں فضل خطاب کا علم عطا کیا گیا ہے اور فضل خطاب زبانوں کے علم و معرفت کے علاوہ اور کیا ہے. آپ کے معجزات بے شمار ہیں. کچھ معجزات کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. روایت ہے کہ مامون رشید نے آپ کو ولی عہد مقرر کیا تو جب بھی آپ اس سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے تو خادم و حجاب آپ کا استقبال کرتے. اب مامون کے دروازے پر پردہ آویزہ ہوتا تو اسے اٹھا دیتے تاکہ آپ اندر چلے جائیں. آخرکار مخلص و باصفا افراد کے ساتھ چند بزرگان ہر و ہوا بھی شامل ہو گئے اور انہوں نے طے کیا کہ جب امام تشریف لائیں گے تو نہ وہ استقبال کریں گے نہ ہی پردہ اٹھائیں گے. جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام تشریف لائے تو گرفتار آپ استقبال کے کھڑے ہو گئے اور پردہ اٹھا دیا. جب آپ اندر تشریف لے گئے پھر دوسروں کہنے لگے ہم نے ایسا کیوں کیا. دوسری بات پھر اس پر متفق ہو گئے اب کہ ایسا نہ کریں گے. جب آپ دوبارہ تشریف لائے تو استقبال تو اٹھ کھڑے ہوئے مگر پردہ اٹھانے میں کچھ لے تو لہر سے کام لیا. اس
से पहले पर्दा उठाते तो अल्लाह ताला ने एक हवा चला दी जिसने पर्दा उठा दिया। आप अंदर तशरीफ ले गए तो हवा चलना बंद हो गई, और जब आपने वापस आने के इरादे किया तो हवा फिर चलने लगी और पर्दा अपने पीछे आप हट गया। हाफिजों ने मुझे देखा तो आपस में कहने लगे जैसे अल्लाह अजीज रखे कोई उसकी सुखी नहीं कर सकता, बादशाह वो आपके इस तरह खिदमत सर अंजाम देने लगे। अहले कूफा में एक का बयान है कि जब मैं खुरासान जाने के लिए कूफा से बाहर निकला तो मेरी बेटी ने मुझे एक बहुत अच्छा कपड़ा दिया और कहा उसे बेच के मेरे लिए फरोजा खरीद लाना। जब मैं मरोवा पहुंचा तो गुलामान हजरत इमाम अली रज़ा ने मुझसे कहा ये कपड़ा हमारे पास भेज दो। मैंने कहा मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है। सुनते लोग चले गए कि दूसरा फिर आगे और कहा हमारे आका ने तुझे सलाम भेजा है, फरमाया तुम्हारे पास एक कपड़ा है तुम्हारी लड़की ने तुम्हें दिया था, तुम उसे बेच दो और उसके लिए फरोजा खरीद सको। हम उसकी कीमत लाए हैं। मैंने कपड़ा नहीं दिया। वालदा दिल में कहा चंद मसाइल आपसे दरियाफ्त करता हूँ, देखता हूँ आप क्या जवाब देते हैं। चुनाचे मैंने चंद मसाले कागजों पर लिखे और सुबह आपके दर दौलत पर हाजिर हो गए। मालूमों का एक हजूम था, किसी की मजाल न थी कि वो इस भीड़ में आपको आसानी मिल सके। मैं हैरत ज़रा खड़ा था, आपको एक गवाह बाहर आया, मेरा नाम लेकर एक तहरीर शुदा कागज मुझे दे दिया और कहा फला ये तुम्हारे सवाल के जवाब हैं। जब मैंने देखा तो वाकई वो मेरे सवाल के जवाब थे। बना में से एक शख्स का बयान है मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि बनाना से तशरीफ लाए हैं और जिस मस्जिद में हाजी ठहरते हैं वहाँ क़याम फरमाए हैं। मैंने खिदमत अक़दस में हाजिर होकर सलाम किया। आपके सामने एक तबाक पड़ा था जिसमें खजूरें थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से मुट्ठी भर कर मुझे इनायत फरमाई। मैंने गिनी तो 18 थी। इसको आपसे मैंने दाबी ली कि मेरी जिंदगी 18 साल बाकी है। इस वाक़े के 20 रोज बाद जब मैंने सुना इमाम हज़रत अली रज़ा अलैहिस्सलाम इस मस्जिद तशरीफ लाए हैं तो मैं फौरन हाजिर खिदमत हो गया। मैंने इमाम को इस जगह तशरीफ फरमा देखा जहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज थे। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के पास भी ये तबाक खजूरों का पड़ा था। मैंने आगे बढ़कर सलाम अर्ज़ किया, आपने मुझे कुछ खजूर इनायत फरमाई। मैंने गिनी तो 18 थी। मैंने कहा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तो ज़्यादा खजूरें चाहिए। इमाम ने फरमाया अगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा तक फरमाते तो मैं भी दे देता। अब इस्माइल सिंधी कहते हैं कि मैं हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम तिजारत के लिए गया तो मुझे अरबी की अलिफ बा भी नहीं आती थी। मैंने उन्हें सिंधी में सलाम किया, आपने इस ज़बान में जवाब दिया। बादशाह मैंने अपनी ज़बान में कई सवाल किए, आपने इसी ज़बान में जवाब दिया। फिर मैंने आते वक्त अर्ज़ की मुझे अरबी नहीं आती, आप दुआ फरमाएं अल्लाह ताला मुझे उससे खैम फरामत दे। आपने अपने दस से अवसर मेरे होंठों पर फेरा तो उसके वक्त मैंने अरबी ज़बान बोलना शुरू कर दी। सुभान अल्लाह। एक रावी का बयान है, मैं एक दिन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ एक बाग में बातें कर रहा था। अचानक चिड़िया आकर ज़मीन पर गिर पड़ी और तालाब की हालत में आए फगा करने लगी। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे मालूम ही क्या जाती। मैंने अर्ज़ की अल्लाह जल्ले शान उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका बेटा खूब जानते हैं। आपने फरमाया ये कहती है इस घर में एक सांप ज़ाहिर हुआ है जो चाहता है कि मेरे बच्चों को चट कर जाए। आपने फरमाया उठो उसके घर में जाकर सांप को मारो। मैं उठा उसके घर में जाकर देखा तो सांप चक्कर काट रहा था। मैंने उसे हलाक कर दिया। एक रावी का बयान है मेरी बीवी हामला थी, हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले गया और की हजूर दुआ फरमाइए रब्बुल इज़्ज़त से फर्जन अदा फरमाए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी बीवी 2 बच्चों से हमला है। वापसी पर मैंने ख्याल किया एक का नाम मोहम्मद रखूंगा और एक का नाम अली। आपने मुझे बुलवाया और फरमाया एक का नाम अली रखना और एक का नाम उम्मे उमर। जब दोनों बच्चे पैदा हुए तो एक लड़का और एक लड़की थी। मैंने उनके नाम तस्दीक अली और उम्मे उमर रखे। एक दिन मैं अपनी माँ से पूछा उम्मे उमर क्या नाम है। मेरी माँ ने जवाब दिया कि मेरी माँ का नाम उम्मे उमर था। एक दिन आप अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा फरमाया बंदे खुदा जो चाहता है उसकी वसीयत कर उससे गुरजा नहीं उसके लिए तैयार हो जा। इस बात को 3 दिन गुजरे थे कि वो शख्स मर गया। आपके अखलाक और इबादत कभी बहुत ही तस्करा है और उसका भी मैं तस्करा करता हूँ। यह बाले अखलाक और इबादत की जो बुलंदी भी है उसे अल्फाजों में बयान करना नामुमकिन है। आप किसी के साथ गुफ्तगू करने में सख्ती नहीं करते थे, न ही किसी की गुफ्तगू कता फरमाते थे जब तक बात करने वाला बात खत्म नहीं कर लेता। अपनी तरफ से बात का आगाज ना फरमाते थे। कभी अपने असाब के सामने पाँव फैला कर ना बैठते और अहले महफिल के रूबरू तकिया लगा कर बैठते। एक रावी बयान करता है मैंने आप पर को कभी थूकते और नाक साफ करते ना देखा। आपने कभी अपने गुलामों को नहीं झड़का, कभी कहके लगाकर ना हंसे और अपने अमजद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सिर्फ तबस्सुम फरमाया करते थे। आपकी इबादत का ये आलम था। रातों को बहुत कम सोते, तमाम रात क़याम और सुजूद में गुजर जाती। अक्सर
रोजे की हालत में होते, हर महीने के 3 रोजे, इसको कभी कज़ा ना हुए। आप अलैहिस्सलाम फरमाते थे हर महीने 3 रोजे रख लेना, ऐसे हैं जैसे कोई हमेशा रोजे रखे। सदका खैरात करने में आप पर कोई सानी नहीं था। एक शख्स रिवायत करते हैं, एक मरतबा सफर में आपके साथ था, एक मुकाम पर जब रसूलुल्लाह मिल गया तो आपने तमाम गुलामों में जिनमें हफ्शी भी थे बुलाकर बिठाया थे, और उसकी आका आप अलैहिस्सलाम उन्हें अलग बिठाएं तो क्या हर्ज? आपने फरमाया सबका रब एक है और माँ बाप और आदम और हव्वा भी एक है, तो फिर तफर्रुक़ कैसा? आपके गुलाम का बयान है कि आप अलैहिस्सलाम का ताकीदी हुक्म था कोई खादिम खाना खाने की हालत में मेरी ताज़ीम को न उठे। आप अलैहिस्सलाम फरमाते थे मजदूरी पहले तय करना चाहिए, क्योंकि तय की हुई कोई इजरत से जो कुछ दिया जाए पाने वाला उसे इनाम समझता है, तय की हुई इजरत से जो कुछ ज़्यादा दिया जाए पाने वाला उसे इनाम समझता है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते थे अल्लाह ताला की नेमतों को ज़ाया ना करो, ठीक तरह से खाओ और जो बच जाए उसे मोहताज को दे दो। सलमान बिन जाफर का कहना है आपको अपने आबा अजदाद की तरह खुद में बहुत पसंद थे। आप शब रोज में 1000 रकात नमाज पढ़ा करते थे। जब भी आप सर पर लेटते हम कुरान मजीद तिलावत फरमाते। मूसा बिन यसार का कहना है कि आप अलैहिस्सलाम अक्सर अपने पैरोकारों के जनाजे में शिरकत फरमाते थे और फरमाया करते हर रोज शाम के वक्त इमाम वक्त के सामने शियों के अमाल पेश होते थे। अगर आप किसी और गुनहगार होते तो इमाम उसी के लिए इस्तग़फ़ार करते। आपके शराज़े गिरामी बहुत सारे हैं, कुछ मैं अर्ज करता हूँ। कुरान पाक पढ़ना शहद खाना पीने से हाफ़ज़ा बढ़ता है। शहद में शफा है, अगर कोई शहद हदिया करे तो वापस ना करो। जो किसी औरत को मेहनत देगा या मजदूर की इज्जत न देगा वो किसी शख्स को फरोख्त कर दे तो बख्शा ना जाएगा। खाने की इब्तिदा नमक से करनी चाहिए क्योंकि उससे 70 बीमारियों से हिफाजत हो जाती जिनमें जज़ाम भी है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की मिसाल सफीना नूह अलैहिस्सलाम जैसी है, निजात वही पाएगा जो उस पर सवार होगा। सबसे पहले जन्नत में शोहदा और यारदार जाएंगे जो परहेज़गार होंगे, और सबसे पहले जन्म में हाकिम गैर आदिल मालदार जाएंगे। जन्म में मुत्तकी और हुस्न अखलाक वालों के, जन्म में जहन्नुम में पेटू और जनाकारों की कसरत होगी। सर का बेहतरीन सालन है, जिसके घर में सिरका होगा वो मोहताज ना होगा। तो सौल उम्र के लिए अच्छा खाना, अच्छी जूती पहनना, करते बचना, कसरत जमा से परहेज करना मुफीद है। कज़ा और कदर के बारे में आपने फज़ल बिन सुहेल के जवाब में फरमाया इंसान ना बिल्कुल मजबूर है ना बिल्कुल आज़ाद। और आपका ये वतीरा था जिस तमाम इमामों का था कि आप जो है आप शुहदा करबला की मजलिस बर्पा किया करते थे, उसका जिक्र मैं करता चलूँ कि शायर आले मोहम्मद रज़ाई बयान फरमाते कि एक मरतबा आशूरा के दिन में हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने देखा आप असहाब के दरमियान इंतहाई गमगीन बैठे हैं। मैं हाजिर होकर देखकर फरमाया आओ हम तुम्हारे इंतजार करते हैं। मैं करीब पहुंचा तो आप अपने पहलू में जगह देकर फरमाया दबल चूंकि आज यौम आशूरा है और ये दिन हमारे लिए इंतहाई रंज व गम का है, लिहाजा तुम मेरे बेजा मजलूम सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम मेरे जल्द मजलूम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मरतबे के मुताबिक कुछ इशार पढ़ो। फरमाए दबुल तो जिस वक्त तुम्हारी मुसीबत पर रोए या रुलाए उसका अजर खुदा पर वाजिब है। ऐ दबुल जिस वक्त की आँख हमारे गम में तर हो वो क़यामत में हमारे साथ मशहूर होगा। ऐ दबुल वो शख्स हमारी नामदार हजरत इमाम हुसैन गम में रोएगा जो खुदा उसके गुनाह बख्श देगा। हमारे जैसे नामदार हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोएगा तो खुदा उसके गुनाह बख्शेगा। तो मामून रशीद का बुलावा इमाम अली जाफर अलैहिस्सलाम की तरफ से मामून रशीद ने आपको बुलाया जी। तो ये इस पर जो है ये जिक्र जो है जारी है और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का जो सदर इमामत के 8वें इमाम है, लेकिन मजबूरी है कि हमें इसको यहाँ रुकना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हम कल दोबारा इसको यहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने पता किया था। तो साथ ही अभी हम एक ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद जो है आप मुलाज़ा फरमाएंगे हमारा कुकिंग शो है उसमें अब आप रिपीट देखेंगे शाहिद आज़म की, वो आप देखेंगे और उसके बाद जो है आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो हम आपको दिखा रहे हैं डिफरेंट एपिसोड का उसका एपिसोड नंबर 31 देखेंगे। तो ये ब्रेक में दोनों देखें। ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह आपका एक खादिम सैयद किरमानी दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तो कहीं नहीं जाएगा, लिखते रहेगा द लाइव TV.tv की नेम का ट्रांसमिशन। ये ब्रेक में दोनों चीज़ें मुलाज़ा फरमाएं जिनको भी मैंने आपको आराम किया, उसके बाद फिर मैं आपको हाजिर होगा। तो ब्रेक पे चलते हैं।